Students, in last video what we have done, we have studied about the corrosion method. Okay, how the corrosion occur when metals are exposed into the air, or you can say in the environment. They react with the sulfur, carbon dioxide, oxygen and other particle of environment, and they destroy their original property. This process of deterioration of metals is known as the corrosion, which we have read in last video. हमने last video में ये किया था. Now today I am going to discuss about the prevention method of corrosion. How we can prevent the metal articles from the corrosion. corrosion से या उनको ख़राब होने से हम उनको कैसे बचा सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे. Students, we have seen that sometimes when we use the iron article at our home or anywhere else, for prevent them from the corrosion, we use the oil as a lubricant, grease, oiling, painting, greasing, etc., which we have seen, and we know about that. These are the most common things which prevents the articles from the corrosion. After that, what we have done the another method that is known as galvanization. Okay, to recall the things from the previous video, I am going to explain the some topics of that also. Galvanization means the process of coating the zinc on iron, और यू कैन से अदर मेटल आर्टिकल. किसी मेटल आर्टिकल पे, स्पेशली ऑन द आयरन आर्टिकल, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से उसके ऊपर क्या कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. ये हम कर चुके थे. मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स बाय कोटिंग देम विद अ लेयर ऑफ जिंक, that is known as galvanization. इसको galvanization बोला था. And we have seen that after the galvanization, if the layer of zinc is broken down, they do not get rusted after that also. अगर उसके ऊपर से वो layer हट भी जाती है, टूट भी जाती है, तब भी वो रस्ट नहीं पकड़ते हैं या corrode नहीं होते हैं. इसके पीछे क्या रीज़न है? We have seen that when the particles of zinc react with the particles of the iron or steel, or the metal which we have taken for the coating, they react with that particles, and diffusion of the solid and solid becomes more stronger, so that they do not corrode it easily for a long period of time. They are in the contact, the particles merge into each other, and they actually, you can say, they make the layer like the alloy. वो एक तरह से alloy बना लेते हैं. alloy के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. alloy होते क्या है, ठीक है. तो दैट वर्क्स लाइक एलो, सो दैट दे डू नॉट कोरोड इजीली. वो कोरोजन का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता आफ्टर ब्रेकिंग द और रिमूविंग द लेयर ऑफ जिंक ऑल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट, now we are going to discuss about the anodizing method. Anodizing is also a method of prevention of metals from the corrosion. ये भी corrosion से बचाने का एक तरीका है. इसमें क्या करते हैं, anodizing method में हम क्या करते हैं, it is a process of forming thick layer of you can say oxide on the aluminium. स्पेशली ये एल्यूमिनियम के लिए लिया गया है. इसमें एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी जाती है. We know that aluminium actually it's a moderate element. It reacts with the oxygen of the environment and make a layer of oxide on its surface. And the layer of oxygen on the aluminium article do not corrode it. It prevent it from the further corrosion. ये एक ऐसी लेयर है जो इसको आगे कोरोजन से क्या करती है, बचाती है. तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो लेयर आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इट एल्यूमिनियम कन्वर्ट इनटू O3, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो इसकी जो लेयर होती है ये इसको आगे कोरोजन से क्या कर लेती है, बचा लेती है. तो एनोडाइजिंग क्या किया जाता है, टू मेक इट मोर इफेक्टिव, और द वी do the another process that is known as the anodizing, in which the layer of oxygen become thicker. उसमें ऑक्सीजन की जो लेयर है, जो लाइट लेयर है, थिन लेयर जो लगती है, उस थिन लेयर को थिक लेयर में कन्वर्ट करने
के लिए हम क्या करते हैं, एनोडाइजिंग मेथड करते हैं. इन दिस एनोडाइजिंग मेथड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एल्यूमिनियम develops a thin oxide layer when exposed to the air. This layer make it resistant to further corrosion. ये इसको further corrosion से क्या कर लेती है, बचा लेती है. ओके, the resistance can be improved further by making oxide layer on its surface, and we can layer of oxide become when we get that thicker layer on the oxide on its surface. जब इसके ऊपर हम उस लेयर को क्या कर देते हैं, थिक कर देते हैं, तो ये इस जो मेथड है प्रिवेंशन का, ये और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो हम इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस एल्यूमिनियम आर्टिकल is made the anode and electrolyzed with dilute sulfuric acid. इसमें जो एल्यूमिनियम आर्टिकल है उसी को क्या कर दिया जाता है, जैसे अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था उसमें, जिसको अपन ने क्या करना है, ऑक्साइड की लेयर जिसके ऊपर चढ़ानी है, इसको अपन क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं. जब इसको एनोड बना देते हैं और हम जिसकी इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना रहे हैं, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं. जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे इसमें से पार्टिकल्स अलग होते हैं. ऑक्सीजन जो पार्टिकल है वो नेगेटिव पार्टिकल वो इसके ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं, एल्यूमिनियम पे चिपक जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, पॉजिटिव आयन. ओके, और पॉजिटिव आयन पे कौन सा जाके चिपकेगा, जो ऑक्सीजन है जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव जाके इसके ऊपर इस लेयर को क्या कर देता है, थिक कर देता है. सो इट बिकम थिकर एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम द फर्दर कोरोजन. ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ becoming making the aluminum article resistant from the corrosion is known as the anodizing. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड अपन डाल देते हैं विच इवोल्व द ऑक्सीजन गैस, एंड दैट ऑक्सीजन गैस you can say cover the aluminum article, or you can stick on the iron article and make it resistance from the corrosion. इसको corrosion से बचाती है और इसकी वजह से ही आयरन आर्टिकल में एक शाइनिंग सी आ जाती है और वो बड़े सुंदर लगते हैं जब वो नए होते हैं. This process is known as anodizing, which is asked in the last board exam. So it is important. Maybe this type of question will be tested, and you can they can ask in this exam also. Okay, so be prepared for that. This is the known as anodizing process. I will provide the notes of this and written notes. Now students, so we have seen the anodizing. We have studied about the galvanization. We have seen the painting, oiling, and another method. In this method, one more is given there, that is alloying. What is known as alloying? Alloying method. Alloying में क्या होता है? Alloying method में क्या करते हैं? जो प्योर मेटल होते हैं वो प्योर मेटल they get rusted easily, they get corrode easily. So for prevent them from the corrosion, two metals are mixed together. Okay, दो मेटल हैं उनको क्या कर दिया जाता है, मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल. ओके, उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, मिक्सिंग कर दी जाती है. ठीक है, और मिक्सिंग इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में करेंगे. ऐसा नहीं कितनी भी अमाउंट उसकी ले ली कितनी, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जब इनकी मिक्सिंग कर दी जाती है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास हमें मिलता है, जो सब्सटेंस अपने पास मिलता है न्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे. और जिस मेटल का बना है, जिन मेटल को मिक्स करके बनाया है, तो हम उसको उसका अलॉय के नाम से जाना जाता है. यू हैव लिसन्ड अबाउट दैट द आयरन पिलर इन दिल्ली ना, आयरन पिलर के बारे में, कि उसके ऊपर वो वैसा का वैसा है, वो कभी कोरोड नहीं होता है, उसके ऊपर रस्ट नहीं लगती है. क्यों नहीं लगती है? बिकॉज इट इज मेड बाय द अलॉय, वो अलॉय से बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल द प्योर फ्रॉम आयरन, इफ यू टॉकिंग अबाउट द आयरन, तो आयरन की अगर बात करी जाती है तो आयरन में क्या होता है, आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड गेट कोरोडेड इजीली. ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल और आ जाता है इसके साथ में, तो ये क्या बन जाता है, रस्ट. क्या बन जाता है, रस्ट. तो ये इस
और वैसे भी अगर मेटल को हम प्योर फॉर्म में कुछ भी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो वो प्योर फॉर्म में काम में नहीं आते, क्योंकि प्योर फॉर्म में वो क्या रहते हैं, दे गेट स्क्रैचेस, कुछ भी स्क्रैच आ जाते हैं, एंड दे आर वेरी सॉफ्ट इन प्योर फॉर्म, सो दे आर नॉट यूज फॉर इन दैट कंडीशन, वो उस कंडीशन में काम में नहीं आते हैं। तो उनको और हार्ड बनाने के लिए, स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाने के लिए और रस्ट फ्री बनाने के लिए, या कह सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस फ्रॉम द कोरोजन, ये सब प्रॉपर्टी लाने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें कुछ मिक्स कर देते हैं जिससे उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है और बेटर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन में कुछ परसेंट, कितना 0.05% ऑफ कार्बन अगर इसमें मिक्स कर दिया जाता है तो ये बन जाता है स्टील ना। आर्टिकल्स और यू कैन से यूटेंसिल्स वी यूज इन आवर किचन मेड बाय द स्टील के बने हुए होते हैं। एक तुमने सुना होगा स्टेनलेस स्टील, स्टेन जिसके ऊपर कोई भी निशान नहीं होता, धब्बे नहीं हो, तो वो स्टेनलेस स्टील कहलाता है। वो इससे भी ज़्यादा बेटर होता है, चमकता हुआ होता है। तुमने देखा होगा आजकल जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है या लोग बाग अपना घर जो बनाते हैं उसमें बहुत चमकती हुई सी रेलिंग्स लगी हुई रहती हैं। दे आर मेड बाय द स्टेनलेस स्टील। वो क्या होता है, दे आर मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। आयरन, क्रोमियम और निकल, कुछ परसेंट इसमें कार्बन की भी होती है, लिटिल बिट परसेंट जो इसमें अपन ने डाली है। तो इन सबको मिला के जो बनता है हमारे पास, कौन कौन है इसमें, आयरन, क्रोमियम और निकेल, इनकी और लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कार्बन है, सो इट मेक द स्टेनलेस स्टील। इन सबको मिला के जो हमारे पास बनता है वो मिलता है हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है, और वो बहुत चमकता हुआ सा दिखाई देता है। हम कई बार बोल भी देते हैं ये चांदी का है, सिल्वर का, क्योंकि जब अपन बिल्कुल ब्रांड न्यू खरीद के लाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि उस कंडीशन में दे पार्टिकल्स के साथ या एनवायरनमेंट के साथ, एयर पार्टिकल के साथ वो रिएक्शन नहीं करे होते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत अच्छे होता है। तो ये स्टेनलेस स्टील, तो एक तरह से द मेकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, द मेकिंग ऑफ स्टील बोथ आर द अलोइंग मेथड। दोनों ही मेथड क्या कहलाएंगे, अलोइंग मेथड कहलाएंगे। इसके अलावा तुमने सुना होगा गेम्स में बहुत जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको मेडल्स दिए जाते हैं, विनर्स को ब्रॉन्ज मेडल, जो तुमने सुना होगा ब्रास के बारे में तुमने सुना होगा। तो ये सब क्या है, दे आर अलोइज। ये क्या है, अलोइज है। ये क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, इफ़ वी आर आस्क अबाउट द alloy, we can define it in this form that alloy is a mixture of two or more metals, or a metal and a non-metal, okay, and then dissolving, you can say then convert into dissolving the another element in the definite proportion। जब metals को दो metals को या तीन भी हो सकते हैं, या उसके साथ एक नॉन मेटल लेके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में उनको डाल दिया जाता है, और उस कंडीशन में हमारे पास जो बनता है वो क्या कहलाता है, अलोय कहलाता है। उसकी प्रॉपर्टी प्योर मेटल से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, अलोय की फॉर्म में ही काम में लेते हैं मेटल्स को। प्योर फॉर्म में वो जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं पार्टिकल्स से, उस कंडीशन में वो इतने यूजफुल नहीं होते जितने अलोय की फॉर्म में होते हैं। तो कुछ अलोयज के यहाँ पे फॉर एग्जांपल गोल्ड है ना, गोल्ड 24 कैरेट, इसका जो यू कह सकते हैं यूनिट जो होती है उसको, उसकी प्योरिटी बताने के लिए वो होती है, प्योर फॉर्म में जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। कितने का, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसको प्योर बोलते हैं। लेकिन इन दैट फॉर्म इट इज़ वेरी सॉफ्ट, दे आर नॉट यूज टू मेक द ज्वेलरी, सो दैट what the jewelers do, they mix some amount in a fixed proportion of silver or copper to make the jewelry, because by mixing them it become some hard, and by that they can make the different type of designs on the ज्वेलरी। वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में ज्वेलरी बनाना या उस पर डिज़ाइन बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, मिक्सिंग कर दी जाती है, या तो किसकी कर देते हैं, वो सिल्वर, Ag या कॉपर की मिक्सिंग। तो 20 जो हमारे पास जो ज्वेलरी आती है वो कितने कैरेट की होती है, 22 कैरेट गोल्ड की होती है वो।
क्योंकि इसमें टू जो पोर्शन होते हैं वो किसके होते हैं, या तो सिल्वर डालते हैं वो उसमें या कॉपर, वो डिपेंड करता है ज्वेलर क्या डालना चाहता है, उसको जो कमर्शियल पर्पज से जो उसको इजी लगता है वो डालता है। मोस्टली दे यूज द कॉपर, कॉपर इज यू कैन से चीप देन द सिल्वर, सिल्वर से थोड़ा सस्ता होता है, दैट्स व्हाई दे यूज द कॉपर मोस्टली। गॉट इट? नाउ अनदर एग्जाम्पल यू कैन सी अलॉय ऑफ मरकरी। मरकरी का जो अलॉय होता है उसको जो नाम दिया गया है वो क्या है, अम्लगम। इफ यू आस्क अबाउट द व्हाट इज अम्लगम, देन यू कैन से you can give the answer that amalgam is a alloy of mercury। वो किसका alloy है, alloy of mercury, Hg। और क्या है, amalgam, amalgam, इसको amalgam बोलते हैं। अगर आ जाता है या पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, लास्ट टाइम भी इसके बारे में लिटिल बिट पूछा गया था, क्या होता है amalgam के बारे में, आप क्या जानते हो, ठीक है। नाउ सी अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अगर हम बात करें किसकी, कॉपर और जिंक का जो अलॉय होता है, कॉपर और जिंक को जब मिक्स करके बनाते हैं तो हमारे पास बनता है